Hey guys, very good evening everyone. Good evening guys. Very good evening. Welcome to this super awesome YouTube channel of India's largest online education platform, Unacademy. And guys, this is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, today I am live for lecture 4 on death of a partner. This is our last unit of partnership, and maybe in couple of days we are going to finish the entire topic. Yes, a very good evening guys. I hope everyone is good, everyone is rocking. Neil, Rishabh, Khushi, Simranjit, Anshika, Yukta, very good evening guys. So friends, हमारा पार्टनरशिप चल रहा है 11:30 AM to 12:30 PM। कल भी इसी समय पे हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, कल का सेशन में भी एक्सटेंडेड हो सकता है मैं कल का सेशन कुछ ज्यादा देर तक कंडक्ट करूं। ओके, सो वी हैव कमेंस्ड अवर आरटीपी एमटीपी बैच फ्रॉम 17th of October और बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। आप भी एनरोल कर सकते हो दोस्तों, जहां पे हम करवा रहे हैं आईसीआई के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आरटीपी एमटीपी एंड पीवाईपी। I have also commenced midnight revision series from 27th of October, जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है दोस्तों। 10 से 12 इसका टाइमिंग होता है ना। क्या क्या होने वाला है मिडनाइट रिवीजन सीरीज में? द सीरीज हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 27th of October और चलेगा 30th नवंबर तक। 20 सेशन होंगे 2 आवर्स ईच और 3 वन शॉट मैराथन होंगे, जिसमें पहला वन शॉट मैराथन कल करवा रहा हूं दोपहर में 3 बजे ऑन द टॉपिक ऑफ एवरेज ड्यू डेट। कल एवरेज ड्यू डेट का टॉपिक हम लोग करेंगे दोस्तों, और केवल केवल 2.5 घंटे में या 3 घंटे में हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। सो वी आर गोइंग टू कवर द problems from study material PYP, RTP and MTP. The class will be conducted from 10 PM to 12 AM. Notes दिए जाएंगे। एंड गाइस, मिडनाइट रिवीजन सीरीज मिनी मैराथन और डे बिफोर मैराथन करोगे 60 प्लस आने के चांसेस है अभी भी। These are the various topics that I am going to cover in midnight revision series जो अभी चल रहा है। एंड दोस्तों, अभी पढ़ा रहा हूं आपको एनपीओ इन मिडनाइट रिविजन सीरीज, आरटीपी एमटीपी बैच, मिडनाइट रिविजन सीरीज और 900 एमसीक्यूज बैच फॉर इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। ये सारा अगर ज्वाइन करना है तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको लेना होगा दोस्तों। You can also go for 2 months का subscription which is going to cost you only 8,100 by applying my code which is DKJ10. You can also go for iconic subscription जहाँ आपको मिलेगा पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज और डिस्कशन चैनल। उसके प्राइजेस भी आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। You can also go for a test series product which is one of the most cost effective test series product in India. For 3 months you will be ending up paying just rupees 1350. But my suggestion to you students is always गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि कोई भी आपका रिजल्ट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहा है, अगेन यू हैव अ फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन, और अगर क्लियर हो जाता है यू अगेन हैव अ इंटर का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो गाइज फॉर 24 months फाउंडेशन प्लस इंटर इज गोइंग टू कॉस्ट यू ओनली 45,000। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सब्सक्रिप्शन फॉर फाउंडेशन एज वेल एज इंटर in entire India. Do not forget to use my code. It's DKJ10. This is our super awesome result of June 22. Expecting the same from you. In fact, much more from you guys. And these are our stars of accounts who have scored 90 plus marks in accounts. Do like, share, and subscribe both these YouTube channels. These are the dedicated channels for CA Foundation students by your loving Bahubali team. And this is the Telegram channel you cannot miss to subscribe. More than 28,000 students have already subscribed to this channel and have been receiving link notes and updates from your loving Bahubali team. And do follow me on the Unacademy's learning app guys. My ID is C_Darshan_Jain. Friends, 3 लेक्चर हमारे डेथ ऑफ अ पार्टनर के हो चुके हैं और तीनों लेक्चर में हमने जेएलपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। ठीक है, सो दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन जेएलपी पे करेंगे, फिर उसके बाद एसएलपी पढ़ेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। रेडी एवरीवन? आर यू गाइज रेडी? चलो लेट्स बिगिन। On 31st March 2020,
The balance sheet of Messrs. Ram, Rahul, and Rohit sharing profits and losses in the proportion to their capital stood as follows. What is their capital? 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh. That means their PSR will be 3 is to 2 is to 1. Capital accounts Ram, Rahul, Rohit. Sundry creditors, asset side, land and building, machinery, closing stock, sundry debtors, cash and bank balance. On 31st March 2020, Ram desired to retire from the firm and the remaining partners decided to carry on. It was agreed to revalue the assets and liabilities on that date on the following basis. Land is to be appreciated by 30%. Land and repeat हो गया point. Land is to be appreciated by 30%. Machinery is to be depreciated by 20%. Closing stock is to be revalued at 80,000. Provision for bad debts is to be maintained at 5%. Old balances of sundry creditors is to be written off. JLP of the partners surrendered and cash obtained 60,000. Goodwill of the entire firm is valued at 1,80,000 and Ram's share of goodwill is to be adjusted in the accounts of Rahul and Rohit who share the future profits equally. No goodwill account is to be raised. No goodwill account is to be raised means magical entry. Gaining partner debit in gaining ratio to sacrificing partner in sacrificing ratio. The total capital of the firm is to be same before retirement. Before retirement, the capital was 6 lakh. So after retirement, the capital will be same 6 lakh and individual capital be in their capital ratio, be in their profit sharing ratio, which is equal. Amount due to Ram is to be settled on the following basis. 50% on retirement तुरंत दे देंगे आधा और आधा within 1 year. मतलब बचा हुआ 50% will go to loan account. Prepare revaluation account, capital account of the partners, loan account of Ram, cash account and balance sheet as on 1/4/2020 of Messrs. Rahul and Rohit. Wonderful question, guys. Expect this question to come in exam for at least 10 to 15 marks. Good question. Let's prepare the format. इसके बाद कुछ questions पूछूंगा आपको, जवाब दीजिएगा. So first of all, prepare revaluation account for around 10 lines. 8 to 10 lines. Revaluation account, capital account of partners with 3 column, Ram, Rahul, Rohit. Ram, Rahul, Rohit. Then prepare Ram's loan account, Ram's loan account, ठीक है. Then prepare cash account, for around 6 lines. And then balance sheet of Messrs. Rahul and Rohit for around 10 lines. वर्किंग नोट में आ जाएगा दोस्तों, ascertainment of gaining ratio of Rahul and Rohit. ascertainment of gaining ratio of Rahul and Rohit. वर्किंग नोट्स में आ जाइएगा दोस्तों. Let me know if you have prepared the format. I'll start the question. Let me know if you have prepared the format, everyone. Ready, everyone? चलो, great. Let's begin. Now, सबसे पहले ये बताना JLP का कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है. मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 या मेथड नंबर 3 विथ रीजन. JLP सरेंडर किया है और 60,000 आए हैं. मुझे ये बताना दोस्तों कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा है.
मेथड नंबर 1, 2 या 3, और उसका रीजन भी बताना, उसका रीजन भी बताना। लेट मी नो रीजन ऑल्सो। यस, वेरी गुड बेटा महक। इट्स मेथड नंबर 1 बिकॉज बैलेंस शीट में JLP JLPR शो नहीं हो रहा है, ना JLP हो रहा है, ना JLP JLPR हो रहा है, दैट मीन्स इट इज मेथड नंबर 1। ओके, चलो लेट्स बिगिन। ऑन 31st March 2020 द बैलेंस शीट ऑफ मिसेस राम, राहुल एंड रोहित sharing profits and losses in the proportion of their capital which stood as follows। कैपिटल अकाउंट राम, राहुल, रोहित आ जाएंगे दोस्तों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन राम, राहुल, रोहित 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या एडजस्टमेंट? ओल्ड बैलेंसेस जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स के 10,000 वो राइट ऑफ करना है। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स को जो 10,000 रुपए देने हैं, समझो 2 लाख में से, वो अब देने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स वो हमारा फायदा हो गया। फायदा हो गया तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में buy creditors return of 10,000 and second effect in the balance sheet on the liability side, it will come to sundry creditors inner column 2 lakh less return of 10,000, outer column it goes to, it comes to amount 1,90,000। I hope everyone is getting these। किसी को कोई शक? किसी को कोई शक दोस्तों? Then let's move on to next item. It's 2 lakh, land and building 2 lakh. The adjustment is land and building is to be appreciated by 30%. What is the 30% of 2 lakh? It's going to be 60,000। Journal entry क्या होगी? Land and building account debit to revaluation account, revaluation account के credit side में buy land and building 60,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दीज। उसके बाद मशीनरी 2 लाख, क्या एडजस्टमेंट है? मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, 2 लाख इंटू 20%, 40,000। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, revaluation account debit to machinery account 40,000। बैलेंस शीट के असेट साइड में भी लिख देंगे दोस्तों। पहला अमाउंट था 2 लाख रुपया, अब उसमें से 40,000 कम हो गए, कितना हो जाएगा? 1,60,000। कम टू बैलेंस शीट असेट साइड, मशीनरी 1,60,000। नेक्स्ट आइटम क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपया दिया हुआ है, क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट ₹80,000, 20,000 से वैल्यू कम करना है। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक 20,000, तो लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू क्लोजिंग स्टॉक 20,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 80,000। I hope everyone is getting this. Let me know guys. Let me know everyone if this is clear. किसी को कोई शक यहाँ तक? सन्ड्री डेटर्स 2 लाख, क्या करेंगे? सन्ड्री डेटर्स का 5% का प्रोविजन मार देंगे। 2 लाख पे 5% कितना होगा? 2 लाख पे 5% होगा 10,000। एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में to provision for bad and doubtful debts, you can also write to RDD 10,000। and friends, second effect will be on the asset side of the balance sheet, लिख दूंगा डेटर्स inner column 2 lakh less RDD 10,000, outer column it comes to rupees 1,90,000।
ठीक है क्या दोस्तों? नेक्स्ट, कैश एंड बैंक बैलेंस 1 लाख। वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कैश अकाउंट, डाल देंगे उसको कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज। टू balance brought down 1 lakh rupees. Entire balance sheet done. Now let's prepare. Let's go for the adjustments. On 31st March 2020, Ram decided to retire from the firm and the remaining partners decided to carry on. It was agreed to revalue the assets and liabilities on the following basis. पहला point, land and building depreciated by 30% हो गया. Machineries to be depreciated by 20% हो गया. Closing stocks to be valued at 80,000 हो गया. Provision for bad and doubtful debts to be made at 5% हो गया. ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्डी क्रेडिटर्स 10,000 टू बी रिटर्न ऑफ हो गया. नेक्स्ट, JLP ऑफ द पार्टनर सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन. जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दो तरीके, या तो JLP को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लेकर चले जाओ, या डायरेक्ट जो JLP से पैसे मिल रहे हैं वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लो. दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो. ठीक है, मैं जो तरीका अपनाता हूं वो हमारे JLP के मेथड नंबर 1 से मैच होगा, जैसा हमने किया है. जब भी मेथड 1 होगी, क्या होगा? जब भी पॉलिसी सरेंडर होगी या मैच्योर्ड होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी दोस्तों? इट विल बी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 to Ram's capital account 30,000, to Rahul's capital account 20,000, to Rohit's capital account 10,000. I hope everyone is getting this. Whatever amount is received is to be distributed in the ratio of 3:2:1. चलो आ जाओ भाई फटाफट. तो पहला इफेक्ट हुआ कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंश्योरेंस कंपनी 60,000, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आने वाले हैं. और दूसरा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स को बाय इंश्योरेंस कंपनी, ब्रैकेट में JLP 30,000, 20,000, 10,000. 30,000, 20,000, 10,000. चलो ये भी एडजस्टमेंट हो गया. अगला, goodwill of the entire firm is valued at 1,80,000 and Ram share of goodwill is to be adjusted in the accounts of Rahul and Rohit who share the future profits equally. Very important guys. क्या करेंगे? What we will do now? We will calculate gaining and sacrificing ratio. What is the new ratio? Ram, Rahul, Rohit. What is new ratio? 1/2, 1/2. राम तो रिटायर हो रहा. ओल्ड रेशियो माइनस कर दो. 3/6, 2/6 एंड 1/6. देखो तो जरा क्या रेशियो बन रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 4/12 गेनिंग रोहित. ये हो गया 2/12 और राम हो गया 6/12. तो राम इज सेक्रीफाइसिंग 6/12 whereas Rahul and Rohit are gaining 2/12 and 4/12. ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों, कर लेते हैं, निकाल लो रेशियो. सो राहुल एंड रोहित. ठीक है, सो गेनिंग रेशियो विल बी 1:2. अरे भाई 2/12 या 2/12 क्या हो गया? ये 1:2 ही तो हुआ. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. ठीक है क्या? चलो ग्रेट. नाउ एडजस्टिंग एंट्री क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट एंट्री? 1,80,000 इंटू सेक्रीफाइसिंग कौन है? राम का रेशियो क्या था? 3/6 इंटू 3/6. कितना मिलना चाहिए राम को? पूरा 90,000. और 90,000 कौन बियर करेगा? राहुल और रोहित. किस रेशियो में?
1:2, 30,000 राहुल बियर करेगा, 60,000 रोहित बियर करेगा। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी दोस्तों, राहुल अकाउंट डेबिट 30,000, रोहित अकाउंट डेबिट 60,000, टू राम अकाउंट 90,000। लिख देंगे दोस्तों, राहुल और रोहित अकाउंट के डेबिट साइड में टू राम्स कैपिटल 30,000 60,000, और दोस्तों बाय राहुल्स कैपिटल राम के क्रेडिट साइड में 30,000, बाय रोहित कैपिटल राम के क्रेडिट साइड में 60,000। किसी को कोई शक? किसी को कोई शक दोस्तों यहां तक? उसके बाद the total capital of the firm will be 6 lakh and it will be distributed equally between continuing partners। तो लिख देंगे दोस्तों, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, राहुल 3 लाख, रोहित 3 लाख, और साथ ही साथ ये बैलेंस शीट में भी चला जाएगा, बैलेंस शीट में भी चला जाएगा दोस्तों। कैपिटल अकाउंट राहुल 3 लाख, रोहित 3 लाख, आउटर कॉलम 6 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू टू राम इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। 50% अभी दे दो, 50% 1 साल के बाद। तो भाई इंटायर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, इंटायर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, फिर अब रिटायरिंग पार्टनर कौन है? राम। राम का पूरा अमाउंट पहले लोन अकाउंट में डाल देंगे और फिर आधा पे कर देंगे, आधा बाकी रखेंगे। राम का अकाउंट क्लोज करो तो जरा, 3 लाख प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000, 4,20,000। इधर भी 4,20,000, पूरा की पूरा अमाउंट लोन में डाल दो पहले। टू राम्स लोन अकाउंट 4,20,000। कहां से आया? बैलेंसिंग फिगर। सेकेंड इफेक्ट, राम्स लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय राम्स कैपिटल 4,20,000। अब लोन में पूरा अमाउंट डाल दिया, लेकिन उसमें से आधा पे कर रहे हैं। एंट्री क्या हो जाएंगी? राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,10,000, 2,10,000 तुरंत पे कर दे रहे हैं, 2,10,000 तुरंत पे कर दे रहे हैं। सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, पहला इफेक्ट राम्स लोन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, और सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय राम्स लोन 2,10,000। ठीक है क्या? ठीक है क्या एवरीवन? चलो बचे हुए दोनों पार्टनर्स के भी अकाउंट क्लोज करो। सबसे पहले बात करेंगे राहुल की। राहुल की 3,30,000, डेबिट साइड बढ़ा है, 30,000 प्लस 3 लाख, ये हो गया 3,30,000। क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे 3,30,000। कितना बैलेंस बचा? 3,30,000 माइनस 2 लाख माइनस 20,000, इट कम्स टू हाउ मच? कितना बैलेंस बच रहा है? 1,10,000 डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? पैसे मंगाने हैं। लिख देंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 1,10,000, राहुल से पैसे आ जाएंगे। रोहित की क्या स्टोरी है? रोहित की भी स्टोरी दोस्तों, डेबिट साइड बढ़ा है, 60,000 प्लस 3 लाख 3,60,000। क्रेडिट साइड में भी लिख दूंगा 3,60,000, माइनस कर दूंगा 1,10,000, उसका आ गया डेबिट बैलेंस 2,50,000। ठीक है, सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू राहुल्स कैपिटल 1,10,000 एंड टू रोहित कैपिटल 2,50,000। डायरेक्ट राम कैपिटल से पे नहीं कर सकते क्या? इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि यहाँ पे राम अकाउंट, राम का लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला है बेटा। ठीक है, चलो राम्स लोन अकाउंट ना जाओ, राम्स लोन अकाउंट, बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। राम्स लोन अकाउंट क्लोज कर रहा हूं मैं।
4,20,000, 4,20,000, 2,10,000 का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन 2,10,000, टू बैलेंस कैरी डाउन 2,10,000 बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। राम्स लोन अकाउंट, राम्स लोन अकाउंट 2,10,000। सर आपने नाइट वाले क्लासेस स्टार्ट कर दिए क्या? नहीं, ये चैप्टर के लिए ले रहा हूं, पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। कैश अकाउंट क्लोज करो तो डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है, 1,00,000 प्लस 60,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2,50,000 कम्स टू 5,20,000। क्रेडिट साइड में भी लिख दूंगा 5,20,000 माइनस 2,10,000, द बैलेंस कम्स टू 3,10,000 डेबिट बैलेंस। क्या कर देंगे दोस्तों? बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा BF। BF मतलब क्या? बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा? 3,10,000। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैंक बैलेंस 3,10,000। दोस्तों इंटायर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्लोज बैलेंस शीट, इट शुड टैली, it should tally 6 lakh plus 2,10,000 plus 1,90,000 comes to 10 lakh rupees। और असेट साइड में 2,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 प्लस 1,90,000 प्लस 3,10,000, ये आ गया 10 lakhs। डन 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 डन। किसी को कोई शक? एनीवन एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो क्या भाई? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। सर आप पढ़ा और डाउट रह जाए, हो ही नहीं सकता सर। ओ हो, थैंक यू सो मच मोनिका। तो ये हो गया भाई JLP का कॉन्सेप्ट। अब SLP का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कल पढ़ाता हूँ SLP अब, ठीक है? कल मिलेंगे 11:30, शायद कल 2 घंटे का सेशन ले लूँ, 11:30 to 1:30, ठीक है? टुमारो वी विल स्टार्ट विथ SLP। कल हमारा बहुत सा पोर्शन हो जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है ना? कुछ होमवर्क दूं क्या? कुछ होमवर्क देने लायक है ही नहीं इसमें। May 23 के लिए बैच कब से? फ्री बैच इज फ्रॉम 10th नवंबर एंड प्लस बैच इज फ्रॉम 24th ऑफ नवंबर। बोल दिया ना बेटा अनुराग। अरे यार है क्या अनुराग, बता दी तेरी। कितनी बार स्पैम करेगा रे होपलेस येड़े? बोल रहा हूं ना, 10th नवंबर से यूट्यूब और 24th नवंबर से प्लस। चलो थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है 10 बजे मिडनाइट रिवीजन सीरीज एंड PO। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो मॉर्निंग 11:30।